Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to teach you about kinds of sentence, about types of sentence. Okay? The sentence and its types, it is very important. It is very important topic of English grammar. Okay, so first of all we are going to explain, we are going to tell you what is definition of sentence, what is definition of sentence, and what is meaning of sentence, and what is structure of a sentence. Okay, so let's start. सेंटेंस मीन्स वाक्य, सेंटेंस मीन्स वाक्य, ठीक है. एंड व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस? द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस इज ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. ओके, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स that make a complete sense is called a sentence. Okay, this is the definition of a sentence. This is the definition of a sentence. A sentence is a combination of meaningful words. A sentence is a combination of meaningful words having a complete sense. Okay, it's called a sentence. Sentence क्या होता है? शब्दों का, सार्थक शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, समूह होता है जो कि एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं. ठीक है ना. अब देखते हैं एग्जाम्पल. यहाँ पे कुछ सेंटेंस के यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे. ही does not work hard. He does not work hard. Okay, this is a sentence. This is a meaningful sentence because it has a complete sense. It expresses a complete sense. It expresses a complete sense, so it is called a sentence. Okay, here is the next example. She like to have a coffee. She likes to have a coffee. उसे काफ़ी लेना, वह काफ़ी लेना पसंद करती है. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो सेंटेंस मैंने लिखा एग्जाम्पल में, और भी सेंटेंस लिख सकते हैं. ठीक है ना. सेंटेंस थर्ड एग्जाम्पल है ये. ठीक है ना. दे प्ले हॉकी with their friends. With their friends. With their friends. They play hockey with their friends. वे अपने मित्रों के साथ हॉकी खेलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हुआ. ठीक है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है. ठीक है ना. और मीनिंगफुल सेंटेंस का जो क्रम होता है वो निश्चित क्रम होता है. ठीक है ना. और सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है. ठीक है ना. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड. तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. structure of
ए सेंटेंस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, ठीक है, वी पुट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब, and after that main verb, after that object and other words, okay. This is the structure of any sentence, any kinds of sentence, okay. So have you getting me exactly? Okay. So now we are going to talk about kinds of sentence. How many kinds of sentence? Kinds of sentence. Kinds of sentence. How many kinds of sentence? There are 5 kinds of sentence. There are 5 kinds of sentence. There are 5 kinds of sentence. सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 5 काइंड्स कह सकते हैं या 5 टाइप का है। सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। assertive sentence. Assertive sentence. Second, interrogative sentence. Interrogative sentence, ठीक। Interrogative sentence. And third is imperative sentence. Imperative sentence. And fourth is optative sentence. And fifth type of sentence is exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Okay, here you can watch at the blackboard, at the whiteboard, that what I am going to explain about all type of sentence. Okay, we are going to explain about all kinds of sentence and with definitions and with suitable examples. Okay, so now we are going to discuss about assertive sentence. What is the meaning of assertive sentence? Assertive sentence means होता है विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य कहें या इसे विधि सूचक वाक्य कहें या assertive sentence means विधि सूचक वाक्य। assertive sentence, assertive sentence means विधि सूचक वाक्य। और कथनात्मक वाक्य, इसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं या कथनात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज definition of assertive sentence? What is definition of assertive sentence? The sentence which makes a statement is called
assertive sentence. A sentence which makes a statement is called assertive sentence. Okay, और कुछ और भी डिफिनीशन होता है. द सेंटेंस मेकिंग ए स्टेटमेंट आर डिक्लेयरिंग समथिंग आर समवन about. Okay, the sentence, this type of sentence declaring something, okay, or someone is called a assertive sentence. Okay, this is the definition of assertive sentence. Okay, now we are going to write here some example of assertive sentence. He reads a newspaper. He reads a newspaper. सेकेंड लिखेंगे we love our country. We love our country. Here is the example. Here are the example of assertive sentence. Okay, and you can see, you can watch that the sentence makes a statement. The sentence is making a statement or declaring something or someone about something or someone. Okay, so this is a assertive sentence. Okay, now we are going to discuss, now we are going to talk about how many kinds of assertive sentence. Kinds of assertive sentence. Kinds of assertive sentence. Kinds of assertive sentence. There are two kinds of assertive sentence. There are two kinds of assertive sentence. First, positive sentence, and second is negative sentence. Second is negative sentence. Okay, positive means सकारात्मक वाक्य. पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य. निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य. निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य. ओके, सो we are going to study about positive sentence. Okay, what is positive sentence? What is the definition of positive sentence? The sentence which express a positive sense is called a positive sentence. The sentence which expresses a positive sense is called positive sentence. Okay, here is some example of positive sentence. Radha goes to school daily. Radha goes to school daily. Okay, my mother loves me. My mother loves me. Here are positive sentence. Okay, and now we are going to positive sentence because it gives, okay, it expresses positive sense. Radha goes to school daily. Okay, this is the positive sense. ठीक है ना. My mother loves me, this is the positive सेंस. ठीक है ना, दिस एक्सप्रेसेस पॉजिटिव सेंस. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस? ओके, नाउ
we are going to discuss about negative sentence. What is negative sentence? The sentence which expresses a negative sense is called a negative sentence. The sentence which expresses a negative sense is called a negative sentence. Okay, here is some example of negative sense. He doesn't like me. He doesn't like me. वह मुझे पसंद नहीं करता है. He doesn't like me. ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस है. निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है ना, निगेटिव वर्ड जो होता है नॉट, वो यूज किया जाता है. ठीक है ना, किसी भी निगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद जरूर यूज किया गया होता है. ठीक है ना. she is not a beautiful girl. She is not a beautiful girl. वह सुंदर लड़की नहीं है. ठीक है ना. She is not a beautiful girl. हाँ, okay. They have not taken food. They have not taken food. You can see here in this sentence, does not, we have used here does not express the negative sentence in a sentence. Okay, and here is not is a हेल्पिंग वर्ब. इज हेल्पिंग वर्ब है और नॉट जो है निगेटिव सेंस को प्रकट कर रहा है. निगेटिव सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है. ठीक है ना. जब सेंटेंस में नहीं आता है तो नहीं शब्द जब यूज होता है किसी हिंदी के सेंटेंसों में, तो हम डज नॉट, इज नॉट, हैव नॉट, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जिस टेंस में ये दिया हो सेंटेंस, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करके उसके बाद नॉट वर्ड को यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद. ठीक है ना. तो ध्यान देंगे यहाँ पे. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे. सेकेंड जो टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में बात करेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. This type of sentence denotes a question or inquiry something about something or someone. Okay, this type of sentence denotes a question or inquiry something about something or someone. Okay, so this is the definition of a interrogative sentence, and here is some example of interrogative sentence. ठीक है. Are you a player? क्या आप एक खिलाड़ी हैं? आर यू अ प्लेयर. दूसरा,
इज ही अ an engineer? Okay, and third example is have you broken the legs of chair? Have you broken the legs of chair? Okay, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस का ना इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, वो सभी क्या होता है, वो सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में, ठीक है ना, जहाँ पे सेंटेंस समाप्त होता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये है क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है ना। तो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंत में, ठीक है ना, किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है ना, जिससे कि हम इसका पहचान कर सकते हैं, ठीक है। हियर सम एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किसी से प्रश्न करने के लिए, ठीक है ना, प्रश्न पूछने के लिए या किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो दो तरह का, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और सेकेंड है WS टाइप क्वेश्चन, WS टाइप क्वेश्चन। ये दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब, ओके, बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। यस नो टाइप जो क्वेश्चन होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जबकि WS टाइप क्वेश्चन बिगिन्स विथ क्वेश्चन वर्ड्स, बिगिन्स विथ क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का बेसिक नॉलेज, ठीक है ना। अब यस नो टाइप क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है आर यू ए प्लेयर, क्या आप एक प्लेयर हैं, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसका आंसर रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं आंसर, ठीक है। इज ही एन इंजीनियर, इज ही एन इंजीनियर, तो इसका भी रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे WS टाइप क्वेश्चन किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू, आप कौन है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, हाँ, व्हेन ही विल कम, वो कब आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, WS टाइप क्वेश्चन होते हैं। WS टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आता है, अदर वर्ड आता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होता है मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होता है। ये है WS टाइप यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना।
और इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा WH टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका होता है क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होता है HV, उसके बाद सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड्स, ओके। और अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ओके।